All right, I think I'll start now. Thank you so much all for joining us today. I think it's an honor for me to have all of you guys here, and I do promise one thing that it's going to be worth your time. और मेरी पूरी कोशिश होगी that you guys take really nice lessons from what we have to deliver today. I'm not going to be taking a lot of time in the presentation because आप लोग के जो questionings हैं और जो question answers वाला session है, it's more important for me okay, I address everyone's personal problems regarding the topic. So I'm going to start by sharing my screen as Jean Barak has already mentioned, and that my name is Reha Rathore, and I am going to be the host for your today's event, and it's an honor. Thank you all very much for this wonderful, wonderful. मेरे लिए एक बहुत honor होता है. This is the second time I'm joining you guys, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि ना सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड बात की जाए, बट ऑल्सो इस तरह की बात की जाए जो आप लोग को प्रैक्टिकली लाइफ में भी फ्यूचर में भी काम है. बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, किताबों से पढ़ा हुआ सारा कुछ हर वक्त काम नहीं आता. सो वी हैव टू टॉक एंड टीच पीपल मोर than just books and just tools and stuff. So I think I'd start my presentation. I'm going to be real quick and I'm going to keep it short ताकि आप लोग सारे इसको मुझसे please to communicate in um, the part where you guys want to ask me as much questions as you have. ताकि ये किसी का कोई, because trust me, presentations का you can't just always discuss everything. You have to listen to what other people has to say. So today is about public speaking and speaking that कि presentation skills किस तरह अच्छे किए जाते हैं. I've made a very short presentation basically covering uh, the जो हमारा एक बेस है ऑफ दिस सेशन के प्रेजेंटेशन दिखनी कैसी चाहिए. प्रेजेंटेशन आप लोग देखेंगे, यू विल रियलाइज दैट इट इज नॉट, that you will figure out stuff like the consistency, the sort of words I'm using, the sort of images I'm using, and that really really counts a lot. So the topic you already know is about public speaking and presentation skills. Let me introduce you guys to what we are going to be discussing, why it is important and so essential to have public speaking skills for everyone and anyone. खाली यही नहीं कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं या ये करियर से रिलेटेड है. ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग, आपकी I think it starts from your house, from the family. जब आप negotiate अपने parents के साथ करना शुरू करते हैं ना, वहीं से आपके public speaking skills जो है वो develop होना शुरू हो जाते हैं. हम सब पाकिस्तानी फैमिली बैकग्राउंड से वी नो दैट हम लोगों को घर में बैठ के भी काफी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमें निगोशिएट करके अपना अपना लोहा मनवाना होता है, अपनी बात मनवानी होती है. सो एसेंशियली वी विल बी स्पीकिंग अबाउट एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस यूजिंग speaking skills and presenting yourself. And we will be, you know, revolving more and mostly around के आपका confidence किस तरह का होना चाहिए और आपकी जो क्वालिटीज हैं वो कौन कौन सी नजर आती हैं when you're giving out a presentation or you're taking yourself in a session. तो ये चीजें कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ट्रस्ट मी, एट टाइम्स लोग आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे होते. मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट लोग आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे होते, वो प्रेजेंटर को देख रहे होते कि उस बंदे का किस तरह का how the person is actually presenting their case. So that is the most important thing. आप 18 दिन लगा के एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो that is a waste of 18 days, 44 hours, whatever time you have taken for creating that presentation. So my goals for this session will be to understand the key elements and effective public speaking. कि public speaking के अंदर elements कौन कौन से होते हैं जो उसको effective बनाते हैं. Learning strategies to improve. Learning strategies में इतनी छोटी छोटी चीजें आती हैं that I will be discussing with you guys and to develop the framework of an impactful presentation. So would start by the core principle of public speaking. The core principles of public speaking, the first thing is first, आप बहुत प्यारी presentation बना के भी आप अगर
उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे और आपकी प्रेजेंटेशन इज अ मेस, तो आप you're wasting everyone's time and your time especially. आई सी सम पीपल जो प्रेजेंटेशन में चीजें फेंकते हैं और बाद में कोशिश करते हैं कि हम उसी में से देख देख के लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के बताते जाएं कि हम मतलब हमने क्या बनाया है क्या लिखा है. दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग ए प्रेजेंटेशन. इससे दोनों चीजें ही खराब हो रही हैं. एक तो आपने अगर मेहनत करके काम उसमें लिखा भी है, दैट इज ऑफ नो पॉइंट. ठीक है, बिकॉज आप देख देख के पढ़ रहे हो और अगला बंदा वैसे ही फोटा हो जाता है कि यार सीरियसली यू शुड हैव एटलीस्ट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ. इतना थोड़ा बहुत कि आपको पता हो कि आप क्या बात करने हो यहाँ पे. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नो योर ऑडियंस. मेरी प्रेजेंटेशन आज की इस चीज पे रिवॉल्व अराउंड कर रही है कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो किस किस ग्रुप से आ रहे हैं, what class or what specific audience am I targeting today. So I tried my level best to make it good in that way. um, Purpose should be clear of your presentation कि आप चाहते क्या है इस presentation से. What I want, I'm not here to give you 1,000 word presentation and make you guys feel like ये जी बहुत लिखा हुआ है, बड़ी wording है, wow wow. This is not the idea. The idea is to engage with you guys both in an intelligence way and also emotionally ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई what are we here doing today. So this is the core idea. ठीक है, मेरा मेरा पर्पस क्लियर है कि मुझे एक ऑडियंस के साथ एंगेज करना है. आई वांट टू मेक श्योर दैट दे टेक समथिंग valuable lesson today from this presentation. I want the when they look at this presentation उनको ये ना नजर आए कि भाई 50,000 लफ्ज लिखे हैं. मैंने इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ पॉइंटर्स डाले हैं बिकॉज मुझे पता है कि मैंने क्या बात करनी है. सो कीपिंग इट सिंपल, लेस वर्डी, to the point, just write down the pointers जो आपको लगता है कि you might miss out on something and you want to make sure कि वो points आपने add की हैं so you are also in a way communicating and not forgetting anything. तो you will figure out, आप देखेंगे इस presentation के अंदर कि ये कितनी simple है. um, so preparing your presentation and research structure. Before I got here, मैंने इस presentation को बनाने से पहले I spent like trust me, I spent like 2-3 hours wondering कि मेरी प्रेजेंटेशन, हाउ डिड आई स्टार्टेड दिस, व्हाट वर माय फ्लॉज. मैं इस चीज को किस तरह मजीद एक अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस और अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के एक्सपीरियंस को इसमें डाल के मैं इसको किस तरह बेहतर बना सकती हूँ. And this presentation is basically the all together of all of that, just trying to make sure कि मेरी personal research ये है कि मैंने बच्चों को बोर नहीं करना कि मेरे पास देखे हैं मेरे वर्ड्स कितने ज्यादा हैं, मैंने लिंक्स कितने ऐड किए हैं. मेरी research ये है that I want you guys to learn the very basic and yet the very important, that the presentation should be a very simple. It should always have the points that you want to deliver. It should always be clear. It should always have at least a couple of pictures so that your presentation is not very dry and boring. कुछ लोग जाते हैं presentation तैयार करते हैं और पीछे जाके फॉर्मेट मार के जो भी आपका लैपटॉप आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा होता है आप हंसी खुशी इस पे उसको लगा के और आपको लगता है कि आई हैव डन व्हाट इज रिक्वायर्ड. प्रेजेंटेशन हर बंदे ने बनाई हुई होती है और एक एक नॉलेज, एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन बनाने के बाद द फर्स्ट थिंग इज के जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना तो और भी बड़े लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो लोग वहां बैठे होते हैं, उन्होंने भी पहले बहुत प्रेजेंटेशन बनाई होती है. तो जो पहले 3-4 आइडियाज होते हैं ना उनको स्किप कर दिया करें बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन इज गोइंग टू बी डूइंग दैट आइडिया एंड योर पॉइंट ऑफ प्रेजेंटिंग in PowerPoint is to be different, to show more, to talk more, and to show more images and links in a way, but also to have small, very less वर्डिंग यूज अगले आपने देख के नहीं पढ़ना. ठीक है, देख के पढ़ना is I think is nahi, you should not take a part in the presentation if you're going to look at the screen or your laptop while the projector is in the background और आपने एक एक चीज को या तो बोर्ड पे पीछे देख के पढ़ रहे होने या अपने लैपटॉप पे देख के पढ़ रहे होने, because this is not what a presentation is about. The presentation should be loud, it should be clear. Presentations usually is basically representation of you, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है, आप बात किस तरह कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, आप इमोशनली इस चीज को लेके सही चल रहे हो. समटाइम्स इवन आई हैव मेड दिस मिस्टेक कि कुछ एक दिन आपके इतने गंदे गुजर रहे होते हैं और आप अपना वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी प्रेजेंटेशन में निकालने लग जाते हैं. तो अवॉइड दैट, कीप योर इमोशनल इंटेलिजेंस
on the side while you're in a professional platform, because that is very, very, very important. So creating effective slides, मैं usually I don't try कि बस presentation तैयार हो जाए और मैं दे दूँ. I try to add images that I love, because जो आपकी presentation में images और जो text होता है, जो graphics होती हैं, वो आपकी mentality की representation होती है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं. Are you a sort of person who would just do it because they have to do it, or will you put effort, try to make it nice, और इस चीज में आप ये भी बहुत किसी बंदे का मेंटालिटी को जज करनी हो ना, व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन और लुकिंग एट अ प्रेजेंटेशन, आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इमेजेस किस तरह की डाली हुई हैं. हैप्पी पीपल ऑलवेज पुट वेरी वेरी हैप्पी इमेजेस, एंड दे आर ट्राइंग टू, उनकी बड़ी यूनिकॉर्न और रेनबो सॉर्ट ऑफ एक बहुत मजे की स्लाइड होती हैं, इट्स गुड फॉर द आईज. आई लव प्रेजेंटेशंस लाइक दैट, जिनको देख के बंदे का दिल करे हाँ यार, आई वांट टू लुक एट दिस. This is fun, this is good, I like that image, I like that part, I like this नीचे जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत प्यारा है, या जो इसके नीचे टेक्स्ट आ रहा है वो बड़ी नीटली लिखा हुआ है. तो ये चीजें विजुअली देखने में बहुत प्यारी लगती हैं. द गोल इज कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो यू शुड बी इन द फोकस एज वेल, एंड ऑल्सो somebody should not like just not look at your presentation. It make sure they look at your presentation ताकि वो इतनी अच्छी हो. These are some very simple things that I've added, and the simpler the better, guys. The more you try to make a presentation good, there's very, very, very huge chance that the more you will mess it up. और presentation जितनी छोटी और जितनी limited हो in matter of time, उतनी ही ज्यादा बेहतर है. You don't have to make 35 slides just to because आपको चांस मिल गया present करने का. Make it take less time अपना आप बताने में, and more spend time asking other people what they want, what they have to suggest about your presentation, what questions they have regarding your presentation, because ये चीजें बहुत matter करती हैं. तो ये 3 pointers मैंने बनाए हैं. The first one is to put images, charts and graphics जिधर जिधर required हैं. जिधर नहीं required, don't overdo it. और जो आपके text हैं वो बहुत खाली images में से, you need to like find a balance. This should just not be about images. This should just not be about text. Um, this thing I have learned over the time, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए in a way बहुत useful भी रही है, that I try to keep the text limited. This is a very nice rule, 6 into 6 ka rule. 6 bullet points and 6 words for each bullet point, so you remember what you have to say. Maintain the consistency in the font, in the color, or in the design. के अंदर अब आप देखेंगे now that I've used at the bottom as a purple, यहाँ पे in the bottom, I will try to make sure कि ये इस C format के साथ नीचे end तक जाए. तो third very most important thing is that I think this is the biggest assumption that we all as grown-ups or as adolescents या teenagers, हमारी सबसे बड़ी assumption ये होती है, even in our early 20s, we assume कि presentation जो है ना, सब जिनको presentation देना आती है, जो adults हैं, जो professional life में हैं, उनको बस पैदाइशी आता है. It's just not true. Everybody has, I personally have had एक दो points पे एक दो time ऐसे थे that I was presenting and literally मेरे हाथ कांप रहे थे because मुझे बहुत ज़्यादा anxiety हो रही थी, because I was really really worried कि ये I don't know how this is going to turn on. They're like 30-70 people in this room are looking at me and looking at my presentation, and trust me guys, to control that about yourself in a public speaking, in a public presentation, is essential. It's very important. आप किसी को ये idea नहीं दे सकते कि you lack confidence. चाहे अंदर से आपका, whatever you're feeling, you don't have the luxury to expose yourself in that sense. So even though I was so scared, my hands were extremely cold, and I was like, yeah, I don't know what to do in the situation, but I try to keep my focus. Um, in a way कि मैं usually जब presentation दे रही होती हूँ, I'm rolling my eyes, I'm not looking at some specific person या एक आध बच्चे को target करके point out करके बात करना. I don't do that. I keep
rolling my eyes. I keep my gesture positive. कि मैं जो हूँ ना किसी को ये मत लगे that I have I'm trying to like cover up myself or trying to इसको मैं एक I'm trying to pretend कि मतलब बस this is very easy. You don't have to pretend. It's not easy. It's very hard. Okay, especially जब आपकी practices नहीं होती हैं. पहली 2 3 4 दफा तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप वाकई डरे हुए होते हैं, वाकई you're anxious, वाकई you feel like you'll mess something mess something up. और यूजुअली होता क्या है कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, the funny part is most of the people there will try to make you laugh or try to make fun of you, especially आपको किसी तरह से मजाक उड़ाते हैं और आपको लगता है कि यार okay shit, I've lost all my confidence up, I can't do this. And this is the point where you have to, because you are on the stage now, there is no way कि आप यहाँ से भाग रहे हो. ठीक है, क्योंकि जो आपने टाइम तो स्पेंड करना है वो आपको करना ही पड़ना है. rather make it that oh I am shy now and I मुझे बहुत मसला हो गया है, मेरा मोरल गिर गया है, मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया है. या ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो कि यार okay fine, whatever, I'm here, I have to make my case, I have to prove my point and I have to go on. और इससे ज्यादा मेरे लिए इस वक्त जरूरी कोई चीज नहीं है. Build that confidence up कि देखो यार, telling you something very honestly, दुनिया कुछ नहीं होने लगा. It's just a presentation. You will be fine. People who are looking at you, somebody's probably learning something. Trust me. If people are looking at you, या वो comments कर रहे हैं आपके ऊपर, that's because they don't have a mentality. They want to look at people and pass judgments. This is who they are. This is not your concern. This does not define your work. And some people will be like in awe कि भाई, oh my god, I never thought this girl would be doing something इतनी confidence के साथ इस तरीके के साथ stage के ऊपर. तो ये चीजें जो हैं, um, it's how you make it happen. ठीक है, आप उस चीज को किस तरह लेके चल रहे हो, आप उसको किस तरह डील करना चाह रहे हो. And that comes with practice. Nobody is born with all the talents. Even the most talented people, they practice in life to become perfect. So um, practice in front of your friends and record yourself. My personal opinion is don't practice in front of your friends. Friends can give you the most biased, you know, or biased is चीज के ऊपर opinion. They can tell you, yeah, you're very good because maybe they want to make it better than you are. So it can be just practice yourself in the mirror. I have done that a lot. मुझे अच्छी तरह याद है, I was in O2, मेरी पहली दफा public speaking थी. I did my O levels and I don't know what was I thinking. I took part in this debate competition. और जब मैं स्टेज पे गई तो मैं 2 बोतलें पानी की पी चुकी हुई थी पहले, बट मुझे फिर भी वो हो रहा था कि oh my god, why did I do this? Why did I take part in this? So somehow अब वो बड़ा वक्त था कि या तो या करना है या नहीं करना. There is no other way. मैं भाग नहीं सकती थी वहां से. I had to take part. I had to do it. And I decided कि यार अब जो होगा देखी जाएगी. ठीक है. मैंने 2 पानी की बोतलें पी हुई थी. The hall was filled with so many people कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोग पहली दफा देखे थे. I think there were 30 people because it was a debating competition. तो जितने ही क्लास 6 से लेके क्लास 10 11 तक के बच्चे थे सारे वहां बैठे हुए थे. I went on the stage and that was my first ever time in a public speaking. मैंने जाके मैं स्टेज पे गई हूँ. मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ट्रस्ट मी. और मैंने जाके बस अपना पेपर पकड़ा है और मैंने बस उस पे से पढ़ना शुरू कर दिया. दो आई वाज practicing that debate for at least a week. मुझे तकरीबन हर चीज ज़बानी आती, लेकिन मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अवाम की तरफ देख के बात कर सकूं. Even then I tried to look out of the paper and look मैंने I think honestly मैंने 3 दफा टोटल देखा होगा ऊपर लोगों की तरफ while giving my debate. And that was when I look back in that time. मुझे हंसी आती है कि यार 3 दफा देख के कौन बंदा डिबेट में पार्ट लेता है. डिबेट इज अबाउट योर जेस्चर्स, योर टॉकिंग, आप अपना मैसेज कन्वे कैसे कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर इम्पैक्टफुल कैसे हो रहे हो. दिस इज व्हाट द डिबेट इज अबाउट. एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. तो आई वाज again then with practice, with everything, मैंने I learned a lot of things. और अल्लाह का शुक्र है वो आज भी बहुत काम आ रही हैं. So prepare for your potential question and answers.
मेरी बात तो ये है कि ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग जिसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देने पड़ जाएं, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरा पिछले पिछले दिनों या आई थिंक 2-3 months ago I was in this I was a speaker guest somewhere, and I pulled a point. I said, because I'm an environmentalist, I pulled a point on the stage, and I said, okay, I believe कि we are not in a phase of life जिधर हम लोग repeatedly recycling के ऊपर focus रखें. I think हमें mitigation के ऊपर ज़्यादा focus रखना चाहिए. So that guy got up and he thought it is very funny to point out because I'm a girl, and it's very funny कि वो ये बात मुझसे करेगा सवाल and I will be scared and I will be like, oh, let's not talk about this. मैंने बोल दिया, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या बोला. Don't talk about anything जिसमें आपको खुद भी पता है कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते. um, 2-3 चीजें मैंने जो अपनी सीखी है प्रेजेंटेशन के टाइम में कि बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत ज्यादा काम करती है. आपकी शक्ल ही बता देती है कि आपका क्या हाल है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. क्योंकि देखें, हम पहले स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइस आई एक्सपेक्ट द सेम एज वेल. जब आपको पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली किसी प्लेटफॉर्म पर जाके करनी पड़ती है ना, तब आपको पता चलता है. You can't go and make fun of yourself in a bunch of really educated people जिनको बात करने का तरीका है, जो फोकस करके बात कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं. You have to beat the competition. You have to make sure कि उनको भी पता चले कि yeah, you're better than them. This is the goal. Trust me. You're not there to बस कि हाँ मुझे चांस मिल गया है, अब मैं जाके उधर बेवकूफ बन के दिखाऊंगी तो या दिखाऊंगा तो it's fine. No, it is not fine. अगर आपने मजाक ही उड़वाना है ना and you think you don't have the confidence, don't do it. Don't do it. Save yourself from the embarrassment. और अगर आप इस चीज के अंदर कॉन्फिडेंटली आ ही गए हैं that you want to take part in this, then body language, maintain a good posture. If you're standing, हिलना मत, हिलना ना शुरू कर देना. मुझे बहुत गंदी बीमारी थी, मैं हिलने लग जाती थी खड़ी खड़ी. और प्लीज, I see every second guy doing this. No offense, boys, but please, when you're talking and standing on a stage and in front of like 20-30 people and you're presenting something, या आपकी presentation है, या आपको किसी ने एक सवाल करने के लिए खड़ा कर दिया है, प्लीज जेबों में हाथ डाल के मत खड़े हुआ करें. This is so awkward. This is so messed up. It is so against the ethics of a public speaking. जेबों में हाथ डाल लेना, और सडनली मुझे समझ नहीं आता लोगों को होके जाता है अगर किसी ने कोई सवाल कर लिया है, आवाज नहीं निकलती किसी की. ठीक है, मुझे समझ नहीं आता why. Why you guys stop and become like one of those people कि बस मेरी तो आवाज नहीं निकल रही है, मैं तो इतनी बात कर सकती हूँ, सॉरी. Stop doing this, please. बी कॉन्फिडेंट. क्या हो जाएगा, गलत बात बोलोगे, व्हाट इज दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? गलत बात बोलोगे. आप लोगों को पता है इतने लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो गलत बात बोल के भी इतने कॉन्फिडेंटली अपना अपना बात मनवाना जानते हैं ना. ठीक है, और आप लोग तो फिर से इस बात पे डर गए हो कि यार मुझसे बोला नहीं जा रहा. मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज. एक टोन मेंटेन रखनी है, और अगर आप उस टोन को मेंटेन ही रख सकते ना तो उसको स्टार्ट ही मत करो. डोंट स्टार्ट दैट टोन इफ यू कांट मेंटेन इट. आई प्रेफर, आई एम वेरी लाउड जनरली एज वेल. मैं बहुत ऊंची बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आई एम लाउड एंड क्लियर. आई नीड टू लिसन टू माई सेल्फ बिफोर वट एवर अवाम या जो भी पब्लिक स्पीकिंग में खड़ी लोग मुझे सुन रहे हैं. मुझे अपने आप को पहले सुनना है, बिकॉज दैट हेल्प्स मी इन अ वे कि जब मैं अपने आप को सुनती हूँ मुझे पता होता है कि मैं नेक्स्ट बात क्या बोलूँ. ठीक है, आई एम मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू से समथिंग एल्स एज वेल. तो एक चीज ये कि जब हम प्रेजेंटेशंस या डिबेट्स या पब्लिक स्पीकिंग में खड़े होते हैं ना, you guys need to make sure कि you're talking, you're listening to yourself, and also one more important thing कि आप सोच के बात कर रहे हो. You should know what you want to say next, because otherwise you are just going to mess it up. आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जानी है जो या तो अवाम को ऑफेंसिव लगनी है, या किसी एक जेंडर को ऑफेंसिव लगनी है, या किसी मजहबी अदारे को या अवाम को ऑफेंसिव लगनी है. यू नीड टू नो कि आप बात क्या करना चाहते हो. ठीक है, और मेरी मजबूरी ये है, आई विश मेरे पास थोड़ा लाइक इन पर्सन अगर मैं आप लोग को ये प्रेजेंटेशन दे रही होती, मैं आपको एक खड़े होके जो व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्टर के साथ हम सारी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी करते रहे, और अभी स्पीकिंग डिबेट्स एंड गेस्ट सब चीजों में भी मैंने बहुत किया है. I hate standing in one place and presenting myself. I need to go back and forth to the stage. The stage is my place now. I own the entire place.
You need to have that image कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी होकर कोने में बात करनी है, मैं क्यों कोने में खड़ा होकर बात करूँ? I don't owe anyone anything. I'm here to talk about what I want to say, and I have all the right to say what I want to say. So you should take the floor, move naturally, move around, talk with people, try to convince in your tone, in your language, with your experience, with your stats, with your graphs, with your images, with your presentation. Try to make an impact. The only powerful people are जो दोनों cases में public speaking के अंदर भी and also in presentations, the only successful people are the ones जो वाकई impact create करके नीचे आते हैं, जिनके लिए वाकई लोग तालियां बजाते हैं कि हाँ यार भाई ये presentation थी, this is how this, I want to listen to this, I want to learn from this was very nice. तो ये impact होना चाहिए. Or guys, don't keep your hands in the pocket, and girls, please don't fiddle with your clothes, your nails, ऐसे करना या इस तरह करना या हिलते रहना या बालों का ऐसे करना. Don't do that. Oh my God, please don't do that. Don't fiddle with your hair. Don't smile and do like this. No, this is very very awkward. आप लोग किधर खड़े हैं यार? It's not professional. It's against professional. आपको पहले पता होना चाहिए कि यार I want to wear this. For example, if I'm wearing this, it's winters. Will I be able to handle this in my presentation? अगर ये गिर रहा है तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है. अगर मैं वो कपड़े पहन रही हूँ ना जो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ, या वो इस तरह के उनका गला मुझे बार बार फिक्स करना पड़ रहा है, या मुझे यहाँ से कोई चीज उठा के फिक्स करनी पड़ रही है, डोंट डू दैट. वेयर प्रॉपर तमीज वाले कपड़े दैट यू कैन मैनेज. You don't have to fiddle with them all the time. And don't do this ke ye is tarah karke, oh my god, this presentation is this. Stop doing this. Be confident. ये चीजें आप लोगों को प्लीज सीखने की जरूरत है. The stage is your place. The presentation is yours. You want to kick ass presentation देनी है आप लोगों ने. You want to make a positive impact, and you need to avoid all of these things, please. मैं very मेरे ख्याल में मेरी presentation एक तरफ, मेरी सिर्फ चंद एक चीजें हैं जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है. अगेन वॉइस कंट्रोल, प्रेजेंटेशन में वॉइस कंट्रोल या पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस कंट्रोल बहुत मैटर करता है. ट्रस्ट मी. अगर आप एक हमारी सोसाइटी में ना एक मेंटालिटी है, एक इट्स कंसिडर्ड इन अ वे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए. अज्यूम ये किया जाता है कि लड़कियों को बहुत आहिस्ता आवाज में बात करनी चाहिए, which आई एम नो ऑफेंस, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करनी चाहिए, पर जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, आपने कभी मरियम नवाज को देखा है? शी इज येलिंग ऑन द टॉप ऑफ हर वॉइस, ठीक है. Benazir Bhutto used to yell on the top of her voice. She was a woman. She was in her 30s and 50s जब वो स्टेज पे जाके लोगों से बात करती थी. क्योंकि you need to know कि you are in control. Your voice is your biggest power. आपकी आवाज is the message actually. बाकी तो किसी ने बाद में देखना सुनना है. ये वो चीजें हैं, ये आपकी आवाज, आपका पोस्चर, आपका डिलीवरिंग वे, आपका जेस्चरिंग करना, ये सारी वो चीजें हैं जो इटसेल्फ बहुत कुछ कह देती हैं आपके बारे में. नोबडी हैज टू लिसन टू यू. इफ दे हैव सीन 1 2 3 4 थिंग्स जो मैंने मेंशन की हैं, दे नो कि हाँ यार वाओ, दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट, वाओ ओके, शी इज आल्सो मेंटेनिंग वेरी, या ही इज आल्सो मेंटेनिंग वेरी नाइस gestures. She's moving on the floor. They've got the control. They know what they want to say, and that is where your voice comes in between. अगर मैं इस वक्त, let me give you an example. अगर मैं इस वक्त इस टोन में आप लोगों के साथ presentation करने लग जाऊंगा, I would look like an idiot, okay? Because this is not some cutie pie competition where I need to speak very cute and nice. This is something I want to make you guys listen to me, where I will make an impact and change, where I want you guys to learn something. So I need to know कि मेरी tone, मेरी voice is empowering. It's telling you that I am here for you guys. I'm here to give you a lesson of life. So take notes, guys. I think सबसे स्मार्ट लोग होते हैं जो किसी को सुन रहे होते हैं तो वो नोट्स ले रहे होते हैं. ट्राई टेकिंग नोट्स. आई वांटेड टू डू दैट माय सेल्फ एंड आई विल डू दैट. स्टोरी टेलिंग, ठीक है, या कोई ऐसा केस स्टडी या कोई एंटीडोट इस तरह के, उससे बिगिन करो. लोगों को पता हो कि यार आप सिर्फ खड़े ही नहीं हो गए हो आके बातें करने, आपको एक्चुअली पता है कि आप स्टैट्स के साथ आए हो, आप एक नॉलेज के साथ आए हो.
when I decided कि मैंने ये presentation आप लोगों को देनी है यहाँ पे, मैंने सिर्फ मेरे पास एक experience था जिंदगी का that I wanted to share with you guys. When I started my career back in 2019, मैं आप लोगों की तरह ही I was a growing adult. I was in my 20s, early 20s, 1920s and 21s. मुझे मुझे भी वो चीजें नहीं पता थी जो इस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ. मैंने अपनी फर्स्ट 2 बुक्स लिखी एशिया फाउंडेशन यूरोपियन यूनियन के साथ कोलैबोरेट करके कोविड के अंदर. और मुझे वहां से बहुत कॉन्फिडेंस मिला. मैं मीटिंग्स देती थी ना, आई यूज्ड टू लुक लाइक ए वेरी डमी, जिससे बात भी नहीं हो रही है और वो बैठ के शी सिटिंग इन मीटिंग्स एंड स्माइलिंग एंड नॉट सेइंग मच बिकॉज एंड दे वोंट टॉक टू मी आइदर बिकॉज उनको पता था यार शी इज नॉट टॉकिंग विद कॉन्फिडेंस. तो दैट्स वेयर आई लर्न कि यार मेरी उस जगह में प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है जहां मेरे प्रेजेंट होने के बावजूद भी मेरे साथ nobody wants to communicate. This is the most embarrassing thing for a person कि आप कहीं पे मौजूद हो but nobody wants to acknowledge that and you don't want to be that person. Yeah, देखो, there are two things: you don't want to be that person or you just don't want to like get in a situation like that कि आपकी खड़े बैठे हो और अवाम आपके साथ बात भी नहीं करना चाहिए because they know you don't have the confidence. And that's where I learned कि my confidence, my value is that कि मुझे पता है कि I want my message या मेरे से भी लोग बात करें या at least मुझे acknowledge करें because I'm also a person. ठीक है, I don't have confidence and then I learned confidence. और वही एशिया फाउंडेशन का ग्रुप जब मैं दोबारा मीटिंग देना शुरू की, it was epic. I made friends. I was able to communicate, deliver my points, deliver my message, tell them कि मुझे अपनी किताबों में ये लिखना है. Not getting approval from them for what I want to convey, but also providing my feedback कि मुझे ये चीजें होनी चाहिए. मेरी books I'm writing, I want to put these things because they are not इतनी knowledgeable, इतनी freely आपको learn करने को नहीं मिलती हैं. And I created those books. वो सफर कहाँ से शुरू हुआ कि मैंने उनकी भी किताबें लिखनी थी बट वो एंडेड इन अ वे कि मैंने हर वो चीज मेंशन की जो मैं लिखना चाह रही थी बिकॉज आई लर्न कि आई हैव गॉट टू टेक कंट्रोल. So humor a little bit. I'm not a humor person. मेरे से सीरियस सिचुएशन, करियर रिलेटेड काउंसलिंग या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर मेरे से ह्यूमर नहीं होता. आई एम नॉट देयर टू एंटरटेन. आई डोंट डू दैट. यू गाइस हैव ह्यूमर. कुछ लोगों में बहुत फिट ह्यूमर होता है. दे कैन मेक यू लाफ in a way कि it's pretty good. You like it. Other people they don't have the confidence. अगर कुछ चीज आपको आती नहीं है ना तो don't try to do it. मेरे से ह्यूमर नहीं होता. I don't do it. मुझे आइस ब्रेक करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है क्योंकि the way I'm conveying a message is strong enough for people to listen, so I don't feel like I have to humor them. Media and key ideas. My usually the work then when I go out as a speaker, वहां पे आपको मीडिया इतना ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता. एंड मैं प्रेजेंटेशन सिर्फ अच्छी लगती हैं जब आप अपने करियर से रिलेटेड दे रहे हो. मैंने WWF को जाके प्रेजेंटेशन देनी थी. दैट मेड सेंस फॉर मी. मैं स्पीकर गेस्ट अगर कहीं जाऊं, आई डोंट क्रिएट प्रेजेंटेशंस. आई डोंट वांट टू बोर पीपल विद ओ लुक आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन, आई एम गोना टेक 20 मिनट्स फ्रॉम योर टाइम क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे सकती, मैंने बनाई. आई डोंट लाइक दैट. आई रिमेंबर वन गर्ल who was there with us at one event. वो प्रेजेंटेशन बना के ले और उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री से बेस्ड नॉलेज थी. And everybody was the host was so like no, we don't need this. In that situation उन्होंने उस बंदी को बात नहीं करनी. तो प्रेजेंटेशन जस्ट बिकॉज आपको बनानी आती डजंट मीन कि आपको हर जगह देनी है प्रेजेंटेशन. एंड ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन आपको सबसे एडवांस टेक्निक बताऊं प्रेजेंटेशन की. प्रेजेंटेशन इज जस्ट नॉट अबाउट पावर पॉइंट. प्रेजेंटेशन इज अबाउट how you are presenting yourself, how you are talking, what you're wearing, how you're handling it, how you're tackling with everybody, especially yourself, your fears, your anxiety. Stage के ऊपर ये presentation भी होती है. You present yourself as a person physically, emotionally and mentally when you're giving a public speech. जो आपके खड़े होने का तरीका होता है वही बहुत कुछ बताता है कि आप अपने आप को किस तरह का प्रेजेंट करवा रहे हो. तो presentation is just not, when the word comes presentation, don't always think कि हम लोग PowerPoint के बारे में बात करें. Presentation is yourself. Presentation can be
जो आपके खाने के ऊपर बहुत मजे के लोग वो प्रेजेंट करने के लिए उसको बहुत डेकोरेट करते हैं, दैट्स आल्सो प्रेजेंटेशन, दैट मेक्स योर फूड लुक गुड। एंड दैट इज अ सिमिलर केस विद ह्यूमन बीइंग्स। आपका how you're presenting, how you're talking, how you're handling, how you're emotionally taking this, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो यू आर द प्रेजेंटेशन, यू आर द प्रेजेंटेशन, not the word, not the stage, you are the person who's going to be presenting yourself। ये यूजुअली हर जगह मैंने पढ़ा है कि जी डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, assign each group with a topic and 3 minute presentation discussions। I don't believe in that। I don't believe in that। Nobody, only the only people who are going to be actually honest with you are your, in my case, your brothers, your sister। और आपके भाई जो होते हैं ना आपको बेस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। आप जाके सोने के बन के उनके सामने खड़े हो देंगे, दे आर गोना क्रिटिसाइज यू, ओ भाई यू आर डूइंग इट रॉन्ग। एंड दैट्स व्हाट यू नीड एक्चुअली। यू डोंट नीड पीपल कमिंग एंड फ्रेंड्स कमिंग एंड टेलिंग टू यू कि नहीं यार आपने तो बहुत फिट किया है, यू डोंट नीड टू लर्न एनी मोर। आई डोंट डू दैट। I don't need प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस या इसको प्रेजेंटेशन की रिगार्ड से ले लो। I don't need my friends' opinion on that because they are my friends, they're in the same league, उनको क्या पता है। तो ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ऑनेस्ट मशवरा देते हैं। um, if I was in a place like that in which I was once, I would go to my brothers, I would go to my father, or my mother or my sister। Family gives you the best opinion क्योंकि वो आपका फेक भी जानते हैं, वो आपका रियल भी जानते हैं। और यू हैव टू कीप इन बिटवीन बोथ। यू कांट बी फेक। आप जाके वहां पे फेक बन के दिखाओगे ना, ट्रस्ट मी, द एंटायर प्लेस, द पीपल यू डोंट नो, इवन वहां के जो झाड़ू फेरने वाले लोग होते हैं उनके पता लगा ये बंदी इतनी बनावटी बात कर रही है, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, ये क्या मतलब क्या हो रहा है। You need to be yourself, you need to keep it professional, you need to keep it your own गले की आवाज। अगर आपकी भारी आवाज है, for example mine, this is what it is, I can't do anything about it। मुझे पी करके बात करने की जरूरत नहीं just because I'm a girl। If you're a guy, you like to speak softly, that is perfectly fine, this is who you are। You're not going to become this host करके बहुत heavy आवाज करके बात करने की जरूरत because I need to prove that I'm a man। No, you don't have to। You just need to be yourself। And people don't like when you are being yourself। They People appreciate every fake thing। We are in that phase of life। और आप गुम जाते हो एक्चुअली। ट्रस्ट में आप गुम जाते हो क्योंकि लोग फेकनेस को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी रियल साइड भूल जाते हो जस्ट टू बी ऑन दैट फेस कि मुझे भी लोग अप्रिशिएट करें। यू फॉरगेट योर रियल सेल्फ। डोंट प्लीज एवर डू दैट, वेदर दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, वेदर दैट इज योर प्रैक्टिकल लाइफ या आपका करियर है या वट एवर। डोंट एवर एवर बी फेक, बी योर सेल्फ एंड दिस इज ऑल यू नीड। इवेंचुअली हर तरह की सक्सेस एक सर्टेन एज में, एक सर्टेन टाइम में आपके पास आ ही जाती है। लेकिन अगर आप अपना आप लूज कर देते हैं इस सब प्रोसेस के अंदर तो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। तो प्रैक्टिकल मेरी तरफ से जो मशवरा है आपको एक्सरसाइज का वो यही है कि अगर प्रेजेंटेशन देनी है एक दफा अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई के सामने तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। दैट्स इट। लुक इन द मिरर, टॉक टू योरसेल्फ, सी के कौन सा एक्सप्रेशन आपने नहीं देना and actually do that quite often। खाली प्रेजेंटेशन देते वक्त नहीं, there are so many times कि कुछ कुछ expressions होते हैं जो आपको सूट भी नहीं कर रहे होते हैं and you're giving those expressions, you need to tell yourself that you've got to stop doing that। Okay, we're coming to conclusion। So public speaking, it's something that improves, with practice। बहुत जलालत उठानी पड़ जाती है बीच में, बहुत अल्लाह ना करे आप लोग जलालत उठानी पड़े, बट बहुत ज्यादा वो फेस देखना पड़ता है जिसमें फॉर एग्जांपल इन माय केस बड़ा पानी पी के प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ता है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। आप लोगों को मेरा सिंसियर मशवरा है ये कि किसी को देखे ना कि वो कर रहा है कि हाँ जी आई एम प्रो मैथ्स, मैं तो बस बहुत फिट हूँ, डोंट बाय दैट, डोंट बाय दैट। दे आर नॉट परफेक्ट। या तो उन्होंने जिंदगी में प्रैक्टिकली बहुत चपेड़े खाई नहीं है या फिर दे आर नॉट इवन प्रैक्टिकली क्या इवन रिमोटली दे आर confident and perfect। They're just pretending। And mostly people who are not
जिनमें एक्चुअली कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती ना, सबसे ज्यादा वही प्रिटेंड करते हैं बिकॉज दे नीड टू कवर देयर फेस, बिकॉज दे नीड टू एक्ट लाइक दे आर गुड, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ लाइक दैट। तो किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, ना ही प्रेजेंटेशन, ना ही लैंग्वेज स्किल्स के अंदर, ना ही क्या कहते हैं अदरवाइज। एवरीबडी हैज देयर फ्लॉज, एवरीबडी हैज देयर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद देयर मनी, एवरीबडी हैज एवरीथिंग गोइंग ऑन। डोंट बाय दिस फ्रॉम एनीवन कि भाई वो बंदा परफेक्ट है, नोबडी इज परफेक्ट। um engage with your audience and enjoy sharing ideas। और इस स्लाइड के बाद एक लास्ट स्लाइड मेरी है जिसमें ये कुछ लोग हैं जिनकी जो टेड टॉक्स हैं, मैंने भी काफी लोगों को टेड टॉक्स पे ही देख के बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपको नजर आता है कि उनका कॉन्फिडेंस किस तरह का है। बट बिफोर आई एंड दिस, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ couple of थिंग्स जो आपको मेरे ख्याल में एक्चुअली प्रैक्टिकली जिंदगी में काम आएगी। um, मुझे सोशल एंजाइटी है और मुझे एडीएचडी है, तो आई फिडल, मुझे मुझे आदत है, आई नीड टू कीप मूविंग अराउंड, और मेरा कॉन्फिडेंस और ये चीजें को मेंटेन करने के लिए आई हैव टू स्टे फोकस्ड। तो और मुझे सोशल एंजाइटी भी है, मुझे समझ नहीं आता इस तरह की दो प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सो फार इन लाइफ बिकॉज आई नो हाउ टू कंट्रोल इट, वेयर टू कंट्रोल इट, व्हेन टू कंट्रोल इट। मुझे व्हाट कीप्स मी गोइंग ऑन इन प्रेजेंटेशंस या जो स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर, इज दैट जिस चीज की आपको जरूरत है ना, फॉर एग्जांपल सम गाइस दे लाइक टू स्मोक, they smoke before they so, some singers they smoke before they come to their events because this is what they need to maintain their focus in an event। मुझे जरूरत है कि मैंने चाय पीना मेरे लिए लाजमी है before I take anything, public speaking या whatever, या presentation या कुछ भी। मुझे चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। I'm gonna have my chai so my brain is active, I am there। I will drink water before, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ताकि मेरा गला ना सूखे, मुझे खांसी आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तीन चार चीजें। आई डू च्यू बबल ड्यूरिंग माय सेशन समटाइम्स। मैंने इस वक्त भी मुंह में बबल रखी हुई बिकॉज दैट हेल्प्स मी, कि मुझे पता होता है कि आई नीड टू कीप इट लो, मुझे आई डोंट बिकम एंशियस, इट रियली हेल्प्स मी। जो चीजें आपको हेल्प करती है ना कि आप एंशियस नाउ, डू दैट बिफोर यू गिव योर प्रेजेंटेशन। लुक नाइस, ऑलवेज लुक नाइस, एंड बाय लुकिंग नाइस आई डोंट मीन कि आप साड़ियां पहन के आ जाओ या टिक्के लगा के आ जाओ इस तरह करके। लुक नाइस मीन्स यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, यू आर द प्रेजेंटेशन, you are the one that everybody will see before they look at your slide। और तीसरी बात guys, always 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 remember, कभी कभी होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम इस तरह की बात बोल जाते हैं जो हम नहीं बोलना चाह रहे थे। और इट इज सो सो असेंशियल कि आप अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर बैलेंस रखें। आपने अगर कोई बात गलत बोल दी है ना, एंड बाय दैट आई मीन जेंडर स्पेसिफिक jokes based on people's age group and stuff like that, jokes based on religious point of views, ठीक है, don't ever do that। It's the biggest put off। और आजकल तो अवाम वैसी पागल हुई पड़ी है तीन चार चीजों के पीछे कि भाई वो ऑफेंसिव ऑफेंसिव ऑफेंसिव, वो बात पकड़ने के लिए बैठे होते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं, कीप 100% पॉइंट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये प्रेजेंटेशन आप बेशक देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप मेरी जो बातें हैं ना, my words have more value over what I'm presenting right now। So I'm going to stop sharing my screen right now, and I'm going to give all of you guys floor to, मेरी तो preference ये होगी to turn on the camera, to unmute yourself and ask me the questions directly। Over to you guys। Okay, so thanks a lot for your time and delivering such an insightful session, ma'am. So without any further delay, we'll be moving towards Q&A session. Guys, all those who are having any sort of queries, you guys can unmute yourselves, or as mentioned by the ma'am earlier, you guys may turn on your cameras so that यहीं से practical implementation शुरू हो जाए आज की session की. Also, अव्वल तो ऑब्वियसली वी आर इन अ सेशन ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो चैट बॉक्स में ना ही टाइप करें, मगर फिर भी अगर इफ समवन इज अनकंफर्टेबल व्हाइल अनम्यूटिंग हिम और हरसेल्फ, तो वो चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। द फ्लोर इज ऑल योर्स गाइस, वी विल बी हैविंग 5 to 10 मिनट्स फॉर दिस Q&A सेशन। जी, एनीवन? मरियम खालिद, मैम मरियम खालिद हैज रेज्ड हर हैंड। ओवर टू यू मरियम। Ma'am, can I ask how you deal with stuttering during your presentations, if you ever stutter?
मैम आपका माइक म्यूट है तो हमें आवाज नहीं आ रही मैम अलिया। Oh, sorry. मैं कह रही हूँ कि मुझे सवाल की समझ नहीं आई. Can you repeat yourself again because the voice is breaking a little bit. Ma'am, how do you deal with stuttering during a presentation if you accidentally stutter during your presentations? I don't, Mariam. I don't. I don't give it. I can't give a. आप इतनी मेरे माइनर छोटी छोटी चीजें के ऊपर आप अपने आप को बुरा नहीं फील करा सकते भाई. आप इंसान के बच्चे हो. You're not a robot. You can make mistakes. आप हकला सकते हो. आप बोलते बोलते भूल सकते हो. And that is the beauty of your presentation. कि आप रोबोटिक खड़े होके वाह करके बात करने लगे. दिस इज नॉट अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एनीथिंग. तो अगर कोई बंदा आपको आके कह रहा है कि यार आप फंस रहे हो या आप सोच रहे हो या आपकी ब्ला 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 शुरू होगी बीच में, तो टेल देम भाई आई एम अ ह्यूमन आई एम अ पर्सन. आई कांट 100% ऑपरेट. मैं मैं कोई रोबोट नहीं. मैं पढ़ के नहीं आई सारा कुछ. दिस इज हु आई एम. आई कैन forget what I was saying. I can make a mistake. I can also swallow my saliva and take a break. I can do before or after I'm speaking, or I will shut up for 1 second because I am a person. I am a human being. Don't let yourself itna यही तो वो फेक प्रोफेशनल सॉरी फेक परफेक्शन वाला माइंडसेट है जो हमें नहीं अपनाना ना. बिकॉज आप अंग्रेजी के वर्ड बोलते हुए भी मिस्टेक्स कर सकते हो. मैंने 50 दफा की है मेरी प्रेजेंटेशन के बीच में. एंड दैट डज नॉट मेक मी एनी लेस ऑफ अ प्रोफेशनल. ठीक है. मैं अभी प्रोफेशनल और परफेक्शन के बीच में गलत से दो अलग लफ्ज बोल दिए हैं. बट दैट मेक मी एनीबडी लेस ऑफ व्हाट आई हैव. इट्स फाइन मरियम. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. एनीबडी एल्स विद अ क्वेश्चन? मैम एक्चुअली द सेशन वाज सो अमेजिंग कि आई गेस किसी का कोई सवाल या क्यूरीज रह ही नहीं गए. खैर nonetheless we'll still be giving the floor to the Tanzila. Ma'am, Tanzila has raised her hand. Over to you, Tanzila. अस्सलाम वालेकुम मैम. एक्चुअली आई वांट टू से कि मैं पहले it is my hometown and now I shift to Islamabad for university. मैं BS में हूँ. जब मैं तरबेला में होती थी तो आई हैड वेरी गुड कॉन्फिडेंस. मैंने स्पीचेस भी की, प्रेजेंटेशंस वगैरह सब कुछ बेस्ट था. बट नाउ कमिंग टू इस्लामाबाद आई थिंक द पीपल आर डिफरेंट. यहाँ पे एक अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. And I am introverted a little bit, so I am feeling difficulty in making friends. And उस तरह का जो level मैंने वहाँ achieve किया था, यहाँ पे मुझे difficulty होती है. So how can I improve myself? Tanzila, honestly, माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी प्यारी और इतनी सॉफ्ट और इतनी कॉन्फिडेंट है कि मेरा नहीं ख्याल मेरे से आपको कुछ सीखने की जरूरत है. ठीक है. you're pretty good. If you have problems making friends, because Islamabad is oh my god, it's a different universe. It's not a city. ठीक है. वहां पे सारे गोरे बनने के लिए तैयार हैं. the the only thing, देखो यार, मेरी प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी लाइफ में एक एक्सपीरियंस था कि आई you can't make friends in 1 year, 2 year. You take your time and make friends. Don't force yourself. You don't have to be in somebody else. एक चीज होती है जो आपको नेचुरली आ जाती है all the time. तो um, you will get used to a lot of stuff, but don't force it just because somebody else is doing. You're pretty good, honestly. And I'm surprised कि आपकी English, आपकी vocals, everything is so mashallah, it's wonderful. So you don't have to push yourself more than this. You will learn things over the time. You will make friends over the time, and you will fall in the pattern. But please, बिल्कुल इस्लामाबादियों की तरह ना होते ना. They're very annoying. My sorry, I'm blunt about this, but I'm just going to be very honest. Okay, so anyone else in the list जिसका कोई सवाल हो या कोई input, कोई query, anything? हसीब, जी हसीब, over to you. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी सलाम. वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह लाइक एंजाइटी को किस तरह मैनेज करती हैं, लाइक प्रेजेंटेशन देने से पहले या कोई भी बात करने से पहले. क्योंकि एंजाइटी जो है, लाइक अगर आप सेशन से पहले या प्रेजेंटेशन से पहले आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो वो आपका जो फर्स्ट पंच होता है, लाइक जो आपने प्रेजेंटेशन में देना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, वो एंजाइटी जब आपको स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका जो है इमोशंस या आपके बात करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको सप्रेस कर देती है.
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप स्टार्टिंग वाली जो एंग्जाइटी है जो आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो फील होती है, लाइक आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं या आपको आपकी आवाज़ नहीं निकलती, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बस मिल जाए ना, फिर इंसान को कॉन्फिडेंस फील होता है कि लाइक अब मैं बात स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्टिंग वाज इज डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे हाँ बस हाँ इस बिल्कुल। चीज़ का आंसर चाहिए कि स्टार्टिंग आप किस तरह वो एंग्जाइटी मैनेज कर सकते हैं। हम उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज करने का कोई तरीका होना चाहिए कि हम अपनी बात स्टार्ट कर सकें। I can't agree more and trust me हसीब, होता ये है कि आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जाओ, ये चीज आपके साथ रहती है। ठीक है, आपके लिए हर एक नई जगह एक नया प्लेटफॉर्म। मैं दूसरी दफा आज आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ इस तरह ऑनलाइन जूम के इस पे गूगल मीट पे, लेकिन मेरे लिए फिर भी ये नया एक्सपीरियंस है। मुझे फिर भी यहाँ पे आके बैठने से पहले एंजाइटी होती है कि पता नहीं मैंने क्या बात करनी है, मेरे आई डोंट प्लान व्हाट माय वर्ड्स शुड बी लाइक। लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बताती हूँ जो मुझे एक्चुअली बड़ा हेल्प आउट करती है। द फर्स्ट वन बीइंग के हमेशा याद रखना कि आपकी प्रेजेंटेशन जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे शुरू होती है ना, the part where you have जहाँ पे लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी right now my presentation start with public speaking and presentation skill and also the introduction. Take 3-4 minutes in the first 2-3 slides. First 2-3 slides should be your 100% backup to gain back your confidence. Also, if you have some problem like anxiety, जो मुझे भी है, मुझे social anxiety है, I'm doing bubble right now and I'm also talking ताकि मुझे वो pressure feel ना हो। और मुझे जब आपको एंजाइटी होती है ना, आपको ऑटोमेटिकली प्यास लगती है और आपको ऑटोमेटिकली फील होता है कि भाई मेरे से गले में से आवाज नहीं निकल रही, मेरे थूक भी नहीं है गले के अंदर, मैंने बात कैसे करनी है। तो च्यू अ बबल, जब आप एक्चुअली बात कर रहे हो तो just put it on the side and keep it there but have something in your mouth like bubble। मेरी एक टीचर थी, वो हमेशा मुंह में इलायची रखती थी। हमें भी उनको ये बताती थी, आई वाज वेरी यंग बैक देन। तो कहती थी कि भी ये सबसे अच्छा तरीका होता है गुस्सा कंट्रोल करने का, एक्स्ट्रा बात कंट्रोल करने का, कि मुंह के अंदर इलायची रख लो एंड यू कैन एक्चुअली नॉट मेक mistakes and talk too much or talk too less. So and also it helps you keep the saliva of flow. So also that also helps because you don't feel thirsty. But also with along all of that, take the first 2 slides, rely on them 100%. Take your time on that. Don't rush through it. जब आप पहली 2-3 स्लाइड्स में आ जाते हो, आपका ऑटोमेटिकली फ्लो बन जाता है, उसके बाद आपको पता तो मैंने क्या करना है। Okay, I'm Okay, done so here. Any I questions? guess Hasib, आपका question addressed है. Mhm. Anyone else having any sort of queries? Okay, so I guess, ma'am, that's it for today's session. Yes, ma'am, there are no further queries, neither in the chat box or कोई hand भी raise नहीं करा. So I guess we should conclude this session. Once again, I, on behalf of Team Burak and all the attendees, thank you a lot, ma'am, for taking out time to be here for such an insightful session. It was really great being with you, and inshallah, we'll keep bugging you in the future as well. Once again, thanks a lot, ma'am. And now over to you for the concluding remarks. नहीं, thank you guys for having me here and thank you everyone जिन्होंने join किया। मेरे लिए it's an honor to be here and to talk to you guys and teach you something that I've learned over my practical life। और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया because you guys make the presentation, yeah, whatever the session, you guys make it wonderful। The host is the people who are listening, they are everything। The presenter has no value अगर उनके पास अच्छी आवाम आके सुनने वाली हो। And it's an honor and I'm really, really, really grateful. Thank you, ma'am. Thanks a lot. With that being said, we'll be concluding today's session. Guys, आप सबको आपके certificates the WhatsApp community में share हो जाएंगे, so don't worry about that. Also, do stay connected with us via our Instagram and LinkedIn account. We'll keep throwing such amazing sessions in the future as well. So yes, that's all from my side for today's session. And once again, thanks a lot, ma'am, for being here with us. ठीक है जी. Thank you guys. Have a great life. Have a great journey of struggles that are coming upon as growing adults. और अपना ख्याल रखिएगा and have a good night. And this is me signing off and Allah Hafiz and thank you again for everything. Bye guys. Ma'am, Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz, everyone. Thanks a lot for being with us for today's session.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।